لیکن میرے عزیز جو بتانے کا مقصد اور اصل ہے جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، قسم خدا کی یہ اگر حقیقتاً میں سنی صحیح العقیدہ کی بات یا سنی صحیح العقیدہ عالم کی لکھی ہوئی کتاب میں کوئی دکھا دے اس چیز کی، تو میں خود اس شخص کو چیلنج کر کے اس چیز کو کہتا ہوں کہ میں الحمدللہ اس بدبخت کو 51,000 روپے اپنی جیب سے، اور 51 تو چھوٹی بات، 1,00,000 روپے اس کو دے دوں گا الحمدللہ، جو اس من گھڑت بات کو نعوذ باللہ بریلوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں سنی صحیح العقیدہ عالم کی لکھی ہوئی کتاب میں سے کوئی دکھا دے کہ دیکھو یہ تمہارے عالم سنی کی لکھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، تحقیق شدہ ہو، میں اس کو 1,00,000 روپے تک دینے کے لیے تیار ہوں اگر کوئی دکھا دے اس طریقے کی بات۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس طریقے کی باتیں اللہ اکبر علماء اہل سنت کی طرف ڈھال ڈھال کر کرتے ہو، صحیح چیز تم بیان نہیں کرتے، اللہ اکبر، تمہیں غیرت آنی چاہیے۔ دلوں سے کہہ گئے دیجئے چھیڑے ناغا میں ایوب، اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہاتھ اٹھائیے، اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم بریلی والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں الحمدللہ، اس کے بعد انشاءاللہ اسی کے تحت کچھ باتیں کرتے ہیں، دیکھیں اور سنیں۔ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے، سیرت غوث پاک، حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ لکھا ہے 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ یہ دستگیر کا معنی یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو گئے کہتے ہیں، ہاں سیر، باغ میں ٹہلتے ٹہلتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا پیر پھسلا کرتے، عبد القادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے کرتے۔ انڈیا سے ایک کتاب چھپی پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت، اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم، یہ صفحہ نمبر 81۔ سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، لکھا ہوا ہے مل رہی ہے بریلی کے اندر، علامہ فاروق بامبے سے چھلانگ لگا کے بریلی شریف پہنچ گئی، ہم کو کہیں نہیں ملی، 12 سال کا عرصہ ہو گیا ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، ایک عدد اس کا کاپی نہیں ملی ہم کو، مل رہی ہے بمبئی کے اندر۔ پھر یہی تفصیل بھول گیا کہ سیرت غوث کہاں مل رہی تھی، پہلے مل رہی تھی حاجی علی کی درگاہ پر، پھر مل رہی تھی کہاں پر، بریلی میں۔ اب تیسری بار کیا کہتا ہے، پاکستان سے لایا ہوں کتاب، میں پاکستان گیا، پاکستان سے کتاب لے کے سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے۔ ارے کہتے ہیں کہ یہ اور اللہ دونوں سیر کو نکلے ٹہلنے کے لیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر پھسلا کرتے انہوں پکڑ لیے کرتے۔ یہ واقعہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے کہ آپ کو دروس حرم صفحہ نمبر 229 پہ یہ واقعہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے، باقاعدہ طور پر گوگل میں موجود ہے، گوگل میں دروس حرم، یہ ہے وہ اوریجنل کتاب جس کا صفحہ دکھا رہا ہے گوگل سے۔ فاروق صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ اور اب کتاب کون سی ہے آپ دیکھ کر ان پر لعنت بھیجو کہ کتنا ذلیل فرقہ ہے، کہ اپنے جھوٹ کو نبھانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا ہے۔ یہ ہے آپ کے سامنے کتاب کا نام ہے بریلویت کی خانہ تلاشی۔ کتاب کا نام بتا رہا ہے کہ یہ کتاب ہمارے اہل سنت کے عالم کی لکھی ہوئی نہیں، یہ دیوبندی بریلوی نے لکھا ہے۔ اور کہاں سے چھپی ہے پڑھ سکتے ہیں آپ، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند یوپی، لکھنے والے مولوی کا نام محمد محمود کیرانوی ندوی۔ یہ ندوی کی نسبت بتا رہی ہے کہاں کی خاک ہے، یہ کہاں کی پیداوار ہے، کیرانہ کا رہنے والا، ندوہ سے پڑھا، ندوۃ العلماء جو وہابیوں کا لکھنؤ کا سب سے بڑا ان کا وہابیوں کا ادارہ، وہاں سے فارغ۔ چھپی کہاں سے ہے، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند سے۔ اور یہ بدبخت نے، دیوبندی نے ہمارے خلاف لکھا، تو جیسے تم نے جھوٹ گڑا ویسے اس نے جھوٹ گڑا، دونوں حمام میں ننگے ہوتے۔ اور یہ لا رہا ہے گوگل میں، صفحہ نمبر اس کا 206 ہے اس کتاب کا، اور اس کے اندر اس نے 20 عبارت پڑھی ہے اس واقعے کی۔ اگر یہ اوپر سے عبارت پڑھتا تو ہر سمجھدار سمجھ لیتا کہ لکھنے والا کوئی بریلوی نہیں ہے۔ دیکھو کہاں سے لکھ رہا ہے، قاری محترم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بریلوی حضرات دستگیر کے لقب سے بھی یاد فرماتے ہیں۔ آج ہم آپ کو پیر دستگیر ان کو کیوں کہا جاتا ہے، بریلیوں کی زبانی سنوائیں گے۔ یہ جملے بتا رہے ہیں نا کہ لکھنے والا کون ہے، جو بندی ہمارا مخالف ہے، بریلی خود لکھیں گے، بریلی کی زبانی سنوائیں گے۔ بغور سنیے اب اسے واقعہ لکھا۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی جنت میں ایک کٹے سیر کر رہے تھے کہ نیچے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کو دکھائی نہ دیا، قدم پھسل گیا، حضرت پیرانے پیر نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچا لیا، تو اللہ نے فرمایا جا آج سے تم دستگیر ہو۔ احمد رضا کہتا ہے، یہ بریلی کی زبان ہوگی، یہ پوری کتاب ہمارے رد میں لکھی گئی ہے۔ سنا آپ نے اور دیکھ بھی لی باقاعدہ۔ یہ ویڈیو دکھانے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ واقعی آج اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی شانوں پر یہ منافق ڈانکہ ڈال رہے ہیں، دلوں میں اولیاء اکرام کی شانوں کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں شکوک پیدا کرنے کا ان کی سوچ اور فکر بنی ہوئی ہے کہ ان کے مراتب، ان کی شانوں کے اعتبار سے لوگ شک میں رہیں، ان کے مراتب کے اعتبار سے شک میں رہیں۔ باقاعدہ یہ جو باتیں الحمدللہ ویڈیو کے ذریعے میں نے آپ کو دکھائیں، بالکل کلیئری طور پر علامہ فاروق صاحب رضوی صاحب نے یہ بالکل صاف و شفاف کر دیا کہ یہ جو اس طریقے کی باتیں نکالتے ہیں اور یہ اس طریقے کی جو من گھڑت باتوں کو
बरेलवी अहले सुन्नत वल जमाअत सुन्नियों की तरफ निस्बत करते हुए इस चीज़ को कहते हैं। हकीकत में ये सब झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं ये। इन बेवकूफ़ दहरों को ये भी नहीं पता कि तुम कह क्या रहे हो हैं। तुम्हें इन लोगों को थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती कि यार तुम किस ज़ात के मामले में इस तरीके की बात कर रहे हो। अल्लाह वहदहू ला शरीक, सारे यानी कि सारी चीज़ों का मालिक वही। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मन तशा, हर चीज़ का मालिक रब है, अल्लाह ही के लिए सब कुछ है। अब ये निस्बत करते हुए दस्तगीर की, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, इसका माना दस्त माने हाथ, गिर माने पकड़ने वाले। अब निस्बत करते हुए नाउज़ुबिल्लाह इन गधों को, इन बेवकूफ़ों को, इन जाहिलों को ये शर्म नहीं आती कि तुम कर क्या रहे हो। जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं उनके शानों को तुम इस तरीके से घटाने की कोशिश कर रहे हो। और निस्बत किसकी तरफ, बरेलवियों की तरफ क्यों करते हो तुम? क्योंकि तुम्हें पता है कि अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी हजरात ये औलिया इकराम से मोहब्बत करते हैं, औलिया इकराम से बेपनाह प्यार करते हैं, और उसी प्यार को तुम कहीं ना कहीं कम करने के लिए, उसमें शक पैदा करने के लिए इस तरीके की मन घड़त बातों को अपनी मिंबरों से बयान करते हो। कहीं तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की शान में तुम मन घड़त बात को इस तरह निस्बत करते हुए बरेलवियों की तरफ तुम बताते हो। अल्लाह का खौफ करो। और तमाम तरह की ये कह रहे हैं कि बरेलवी किताब में नाउज़ुबिल्लाह अभी तक कहीं भी किसी भी किताब में इनके एतबार से जो इन्होंने किताब लिखी जो बरेलवियों के खिलाफ लिखी गई है, यानी कि सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ इन लोगों ने लिखी है, उसमें जो इन लोगों ने मन घड़त बातें बयान करते हुए निस्बत बरेलवियों की तरफ की है, अल्लाह, इसके अलावा में कोई ऐसी किताब दिखा दे जो सुन्नी सहीहुल अकीदा की लिखी हुई हो और उसके अंदर इस तरह की कोई बात मिलती हो। हत्ता कि हमारे तमाम उलमा का ये एतिकाद और तमाम उलमा का इस चीज़ पर ये इत्तिफाक है कि ये मन घड़त बातें हैं, और किसी ने भी जिसने भी ये बात घड़ी है वो औलिया इकराम की शानों को घटाने के लिए और अल्लाह वहदहू ला शरीक की शान में इस तरीके की बात की है। तो जाहिर सी बात है, जो रब की शान में इस तरीके की बात कहे तो वो ईमान वाला नहीं है भाई, ईमान वाला वो। और तुम निस्बत किसकी तरफ कर रहे हो? तुम्हें शर्म तो नहीं है? थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती? अरे यार शर्म किया करो। अगर कोई बात निस्बत करते हुए कहो तो कम से कम सच तो बोला करो कि सही अकीदा क्या है। अब तुम छोटी छोटी क्लिप्स उठाकर अवाम उन्नास की जो जाहिल हैं, इल्म नहीं जानते, ये देखो बरेलवी क्या कर रहे हैं, बरेलवी क्या कर रहे हैं, तुम्हें पता है क्या कर रहे हैं। अब उस अवाम को तुम समझाओ ना, ये फालतू गिरी छोड़कर उलमा को टारगेट करते हुए जो इस बातों को तुम कहते हो, कहीं ना कहीं तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम उन लोगों को समझाओ जिन लोगों को गलत करते हुए देख रहे हैं। हम भी समझाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है जो गलत कदम, मान लीजिए कोई भी गलत बात होती है हम उसको पकड़कर समझाते कि नहीं, अपने मिंबरों से गलत बातों को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ ये समझ रखा है कि अपना झोला, अपना झोली उठाओ और चल दो, भर लो, इस तरीके से निशाने बनाते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखना मेरी इस बात को, अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी, बरेलवी सुन्नी, अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत अली रहमा से निस्बत करते हुए इस चीज़ को कह रहा हूँ, वही है हम अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूबीन बंदों की शानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा शान मानते हैं। यानी कि हमारे दिलों में ना तो नबियों का बुग़्ज़ है, ना ही सहाबा का बुग़्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही वलीउल्लाह का बुग़्ज़ है। हम तमाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा जो शानें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको मानते कि ये वली हैं, ये अल्लाह के दोस्त हैं, और अल्लाह ने इनकी शान कुरान के अंदर बयान फरमाई हैं। और इसी तरह और भी इस टॉपिक पर बहुत सी बातें छिड़ सकती हैं, लेकिन मेरे अजीज़, जो बताने का मकसद और असल है, जो इस तरीके की बातें करते हैं, कसम खुदा की, ये अगर हकीकतन में सुन्नी सहीहुल अकीदा की बात या सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम की लिखी हुई किताब में कोई दिखा दे इस चीज़ की, तो मैं खुद उस शख्स को चैलेंज करके इस चीज़ को कहता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस बदबख्त को 51,000 रुपये अपनी जेब से, और 51 तो छोटी बात, 1,00,000 रुपये उसको दे दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस मन घड़त बात को नाउज़ुबिल्लाह बरेलवी की तरफ निस्बत करते हुए कहते हैं सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम की लिखी हुई किताब में से कोई दिखा दे कि देखो ये तुम्हारे आलिम सुन्नी की लिखी हुई है, अल्लाह अकबर, तहकीक शुदा हो, मैं उसको 1,00,000 रुपये तक देने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई दिखा दे इस तरीके की बात, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस तरीके की बातें अल्लाह अकबर उलमाए अहले सुन्नत की तरफ ढाल कर करते हो, सही चीज़ तुम बयान नहीं करते। अल्लाह अकबर, तुम्हें गैरत आनी चाहिए। दस्तगीर का लक़ब जो है अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से लोगों की मदद फरमाया करते हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हाथ में इनके रहमत अता फरमाई, रहमत वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कि वो जिस तरह अपने बंदों की चाहे, जिनके ज़रिए चाहे मदद फरमा दे। अब ये वलीउल्लाह हैं, गौसे आज़म दस्तगीर हैं। अब इसमें भी तमाम तरह की बातें निकालना कि ये देखो शिर्क कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। याद रखना अल्हम्दुलिल्लाह, हम फ़र्ज़ वाजिब वलीउल्लाह से मदद मांगने को नहीं समझते हैं, लेकिन हाँ, हमारा अक़ीदा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत तरीक़ा भी है, मुस्तहब तरीक़ा है कि अगर कोई ये नीयत करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब यानी दोस्त बंदे की बारगाह में
चला जाए और रब की बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठाकर दुआ कर ले, मान लीजिए उनसे ही ये कह दे, बिलफर्ज मिसाल के तौर पर उनसे कह दे कि आप मुझे ये चीज़ अता कर दो, ये चीज़ दे दो, और उसकी नीयत ये है कि देने वाली हकीकतन ज़ात जो है वो अल्लाह की है, तो मेरे अजीज़ यहाँ पर भी कोई शिरक नहीं कर रहा है। वो तुम इस चीज़ को जो शिरक बना बना कर लोगों के सामने पेश करते हो, पहले सही अकीदा पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह उसने अकीदा जो है अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ रखते हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद और उसकी कुदरत को मानते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह उसको पता है कि ये जो है अल्लाह के दोस्त हैं और अल्लाह इनके ज़रिए से मुझे अता फरमा देगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्न अता से अगर ये भी चाहें, अल्लाह की इज़्न अता से अगर ये भी चाहें तो ये मेरी मदद फरमा सकते हैं। और किसी भी सुन्नी आलिम का ये अकीदा नहीं है और किसी भी सुन्नी अवाम का ये अकीदा नहीं है कि बिज़ात ये इन शानों के मालिक है। नहीं, कोई भी ज़ात हो ही नहीं सकता। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, जो मान ले वो कुफ्र और शिर्क वो कर रहा है। और हकीकत ये तमाम बातें तरीक़े से समझाने की होती हैं, ये नहीं कि ये है वो है। अल्लाह अकबर मेरे अजीज़, ये तमाम बातें जो मेरा कहने का मकसद है कि जो ये करते हैं, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दस्तगीर का लक़ब ये आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी तौर पर खूब मदद फरमाते हैं। और उस वक्त आप अपने दरसगाह में बैठे हुआ करते और किसी ने कह दिया आपका नाम लेकर कि मेरी मदद फरमाए, तो अल्लाह की इज़्न व अता से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये ताकत आपको दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह है कि आप उस वक्त जब आपको कोई पुकारता, अल्लाह की इज़्न व अता से आप अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मदद को पहुंच जाते। तो बताइए, ये सब बातें जो गलत तरीके से तुम निकाल कर अहले सुन्नत पर लगाते हो, शर्म आनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही मांगना ये फ़र्ज़ व वाजिब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब से फरमाया, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से, कि जब मेरे बंदे मेरे मामले में मेरे बारे में सवाल करें कि मैं कहाँ हूँ, व इदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, तो महबूब आप उनसे बता दो कि मैं तो बिल्कुल करीब हूँ अपने बंदों के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा हमारा है कि अल्लाह ही से फ़र्ज़ वाजिब है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिनके दिलों में नबियों की और वलीउल्लाह की शानों के एतबार से एक दिल में शुगूक पैदा हो, तो बताइए उसका अकीदा दुरुस्त है? नहीं, वो तो कहीं ना कहीं शक में पड़ चुका है। और आज यही मुल्हिदीन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बैठकर तरीक़े की बात नहीं बताते। अल्लाह अकबर कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह कि लोग इतने बड़े बेवकूफ़ हो गए, इस तरीके की बात वो ढालते हुए कहते हैं कि जो कब्र में मुर्दा लेटा है वो तो इनकी डायरेक्ट सुन लेता है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक है वो वसीले से सुनता है। अरे गधो, तुमसे किसने कह दिया इस चीज़ को? अब तुम इस तरह बात कर करके अपने मजहबी इस्लाम के मजाक बनवा रहे हो दुनिया भर में। सही अकीदा तुम बयान करो ना। अल्लाह अकबर, कि बात असल है तो है क्या? अल्लाह अकबर, ये ना शर्म व गैरत नहीं आती जो इस तरीके की बात कहते हैं। अरे किसने कह दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वसीले का मोहताज है? नहीं, अल्लाह वसीले का भी मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह पसंद फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर उसकी बारगाह में उसके महबूब बंदे का कोई वसीला लेकर दुआ फरमा दे, दुआ कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब, मान लीजिए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हो या औलिया किराम की जमात हो, उसके महबूब बंदे हों, अब उनके ज़रिए से, उनके वसीले से अगर दुआ कर ले तो ये गुनाह कबीरा या हराम नहीं हो गया है। अल्लाह अकबर। तो मेरे अजीज़, बहुत सी बातें हो सकती हैं, बात बढ़ती चली जाती है, कितनी भी मैं मुख्तसर करने की कोशिश करूँ। इस मामले में मैंने कहा है कि ये सही बात अगर ये हमारी किताबों के अंदर दिखा दे या हमारे किसी भी आलिम से ये साबित करके दिखा दे, तो इनको 1 लाख रुपये अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नहीं दिखा सकते क्योंकि इन लोगों को मन गढ़ंत बातें हमारी तरफ मंसूब करना आती हैं। सही बात ये नहीं पहुँचाते, सही बात नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि लोग सही समझ ले। उसका तो काम है ईमान वालों को बहकाना और ईमान पर डांका डालना। मेरे अजीज़, खैर बहुत सी बातें हो सकती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।